Dear parents and teachers, by watching up to the end of the video, you will know how to guide your child for reading skills. First, I have taken blends like blah, cla, fla, pla, and gla. Ample examples like this are given in the juniors book or available online that you can download and give them for practice. When we are mixing BL, blah, FL, cla, these are making sounds. S blends are there, sta, sna, sla, spa, like stage, slick, nick, spoon, give them such reading. R blends, br, cr, cr, tr, tr, dr, dra, braid, crab, truck, drink, broom, crust, train, drill, like that. After giving blends, give them this vowel sound practice that is A, E, I, O, U, cat, bed, fit, cot, fun, mat, lead, wit, pot, run, like that. Some silent letters are also required for your word so that you can give them such practice and awareness so that they can know what are the silent words like Wednesday, sandwich, not sandwich, and so it follows GUNT. You can give double vowels like that also, boat, coat, toast, form, shock, and then we have how to break the words into syllably. This practice is very important, so listen it carefully. First understand and then make your word understand this. Make the tiny tots your children understand the ending that is often suffix like ed, ing, ar, okay, like teacher, reading, and these suffixes like full. And then second one is look for prefix that comes just before the root word to make it large, like un, predict, unpredict, re, dis, pray, re, x, come. So these are coming before the words. Make them aware of these facts. Now take the list of compound words. Compound मतलब आप जानते हैं दो मिला हुआ, जैसे 3 नंबर में आप देखें मेल बॉक्स, मेल प्लस बॉक्स, ओके, dog house, dog plus house. Then go to the breaking up the word like middle, mid plus DLE, middle, where they can break and read it, guide them. And then fifth number, look for chunks you know, means already the sight words they already know as your previous knowledge is there. Suppose you are taking a big word flickering or acknowledgement, that is a big word. Now flickering, दिस कैन बी डिवाइडेड, इसको ताली बजा करके ना बच्चों को बताइए। जैसे फ्लिकरिंग में कितने बार ताली बजेगा? 3 बार, एक फ्लिक के लिए, एक ए आर के लिए और एक आई एन जी के लिए। फ्लिक कर रिंग, तो 3 बार ताली बजा के उसे बताइए। जैसे ब्यूटीफुल, 3 बार ताली बजाएं और उसको ब्रेक करके बताएं। तो सिलेबली बताने का सबसे आसान तरीका आपका ताली बजाना भी हो सकता है डियर पेरेंट्स। जैसे कोई आप वर्ड ले, जैसे वन, ONE वन, 1 बार ताली बजेगा। लेकिन अगर आप ऐसे दूसरे वर्ड्स बच्चों को बताएंगे, जैसे ट्रिक, 1 बार ताली बजेगा। मोबाइल, कितने बार ताली बजेगा? कंप्यूटर, कितने बार ताली बजेगा? आप कितने जगह पे ब्रेक महसूस कर रहे हैं, आप भी ताली बजाएं और बच्चों को भी ताली बजवा करके साथ में पढ़ाएं। जैसे मैंने पहले कहा डॉक्टर, 2 बार ताली बजाएं, वही बजाएंगे कि 1 बार डॉक, 1 बार ट। फा द, म द, ये 2 बार ताली बज रहा है। तो सिलेबली और
इस तरह के हार्ड वर्ड समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उन्हें ताली के द्वारा ही ये चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे हम सिलेबली में तोड़ रहे हैं। जैसे कोई बड़ा वर्ड ले लीजिए, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट, कितने बार ताली बज रहा है? एक्नॉलेजमेंट। कुछ वर्ड्स तो साइट वर्ड्स होंगे डियर पेरेंट्स और टीचर। साइट वर्ड्स जैसे कि इन, ऑन, है ना, आर्टिकल्स, ए एंड द। तो जब बच्चे रोज एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो इन सब चीज़ों को तो वो यूं ही पकड़ लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि एक पेज में शुरू में 10-12 या 7 से 8 ऐसे वर्ड आ रहे हैं, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे एक्नॉलेजमेंट, जैसे रिकरेंस, डिलैपिडेटेड, ऐसा कुछ भी वर्ड जो उनके लिए नया हो, तो आप उसको सिलेबली में तोड़ करके, कैसे आप तोड़ेंगे? ताली बजा के उनको गाइड करेंगे और बोलेंगे कि इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल को उन्हें समझाएंगे कि कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होते हैं, और उन्हें ये बताएंगे कि कॉन्सोनेंट का अपना साउंड तभी बनता है जब हम उसमें वोवेल ऐड करते हैं। जैसे कैट, केवल सी लिखने से वो कुछ नहीं होता। जब हम लिखें उसमें ए, कै एंड देन ट लिखें तो ट बना है, तो उसमें मेन किसका काम है? वोवेल का साउंड का काम है। इस बात को उन्हें अच्छे से समझा देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चों को दिन में 2-3 बार, कम से कम 3 पैराग्राफ, या एक ही बार में ब्रेक ले लेकर कम से कम 3 पैराग्राफ रोज़ पढ़ाएं। और उस पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ को आप ले रहे हैं उसे जब 3 बार पढ़ाएं, और कोशिश करें कि 3 पैराग्राफ अलग अलग लें 3 बार में। उसमें जो नए वर्ड्स आते हैं तो वास्तव में वो उनके लिए नए होंगे। धीरे धीरे वो वर्ड रिपीट होते रहेंगे और आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में बच्चे में बहुत अंतर आ गया है। हम करते क्या हैं डियर पेरेंट्स, कि एक्चुअली हम एक दिन बैठते हैं और देखते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम टीचर को ब्लेम करके छोड़ देते हैं या खुद समय निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन वास्तव में केवल थोड़ी अभ्यास और निरंतरता की आवश्यकता है। इफ़ यू सीट रेगुलरली फॉर देम, रियली दे कैन डू वंडर्स। आप 1 से 1.5 महीने उनके साथ थोड़ा लग के देखें और वो रीडिंग करने लगेंगे। ये बहुत आसान होता है। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो यहाँ एक चार्ट आ रहा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि प साउंड है पाई, ब बाई, म माई, है ना, फ फाई, व वाई, थ थाई, द दाई, ट टाई, ऐसे सारे कॉन्सोनेंट है। ज जैप। अब मैं सेकेंड रो में चलता हूँ, है वो राई, बैरल। फिर ल साउंड है लाई। फिर तालाबी श वाला साउंड है शाई, नेशन, मशीन। ओके। जो नया सिंबल लग रहा है उसमें बता देता हूँ। जो बड़ा सा हुक है वो श है। ज अजर, ज साउंड है वो। फिर है च, फिर है जज, और फिर नया सिंबल कोई नहीं है। फिर आपका नीचे है अंगा, ब्रिंग, गांग, और बाकी कोई नया सिंबल नहीं है। ह तो हाई है, डब्ल्यू वाई है, आप समझते हैं। इसे भी आप बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाएं और इसका बार बार अभ्यास कराएं। जो सिंबल समझ में नहीं हो आए उसके आप फिर से मेरे वीडियो को देख करके समझ लें। ये और भी फोनेटिक सिंबल्स हैं जिसमें वोवल्स एंड डिप्थोंगल्स, यानी कि 2 वोवल्स टुगेदर दिए गए हैं। सबसे लास्ट राइट साइड में आप देखें तो नीचे के 3-4 को देखें राइट कॉर्नर में, है ना। तो क्या है? औ, जैसे गौ, आई 5, औ नाउ, ओई बॉय, इया निया, एया हेया, उआ पुआ। So like that, practice is required only. So whatever phonetic symbols you found new और बिजारे और स्ट्रेंज, जो भी आपको नया लगे, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक भी दे दूँगा जिसमें मैंने साउंड को बोला है, और आप उससे भी बच्चों को साथ में बोलने का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आप क्लस्टर साउंड से क्ल, फ्र, ट्र, ड्र से शुरू करें, फिर सिंगल वोवेल और फिर डबल वोवेल वाले वर्ड्स उनको पढ़ाएं, और फिर जो ताली बजा के सिलेबली अलग कर करके मैं पढ़ाने वाली बात बोल रहा था बीच में वीडियो के,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में ही आपके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ने लगे हैं, बस 2-3 पैराग्राफ लगातार पढ़ाते रहें।